Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is The Human Environment, Settlement, Transport and Communication. मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार. 7th क्लास का 7th चैप्टर है ज्योग्राफी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. In chapter first, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelters, but with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communications. In this way, they modified the environment where they lived. यानी कि चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रारंभिक मानव थे भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे, लेकिन समय के साथ साथ उसने क्या किया, नए नए कौशल सीखे और खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया था और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. इस तरह से उसने अपने आवास के वातावरण को अपने को अनुकूल बनाया. आगे देखिए, इसमें सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे. बस्तियाँ. Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. These settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilization developed near river valley. Do you recall the name of civilization that grew along the bank of river Indus, Tigris, Nile and Hong-He? देखिए, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं. आदि मानव वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे. जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना जरूरी हो गया. बस्तियों का विकास नदी घाटियों के नज़दीक ही हुआ क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था तथा भूमि उपजाऊ थी. व्यापार, विनिर्माण और वाणिज्य के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई. नदी घाटी के निकट बस्ती बनने लगी और सभ्यता का विकास हुआ. क्या आपको सिंधु, नील, टिग्रिस और हांग-ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देखिए आगे. Settlement can be permanent or temporary. Settlement which are occupied for a short time are called temporary settlement. The peoples living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transshumance. However, more and more settlement today are permanent settlement. In these settlements, peoples build homes to live in. यहाँ पे क्या बताया कि जो बस्तियां हैं वो स्थायी और अस्थायी हो सकती हैं. जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं. घने जंगलों, ठंडे और गर्म रेगिस्तानों में क्या होता है कि जो रेगिस्तान तथा पर्वतों के जो निवासी हैं अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं. वे संग्रहण, आखेट, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं. अधिकांश जो बस्तियां हैं अस्थायी बस्तियां हैं. इन बस्तियों में लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं. आगे देखिए इसमें. It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last Gurpreet arrived, tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed. Oof, the pollution is our city. Prasad had recently come from his village. He asked, why do we have such traffic jam and such pollutions in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the peoples live? Mr. Thomas said, that's why you see so many slums and squatters settlement where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Prasad said, our villages may not have big cinema hall, well-equipped schools and good hospitals, but we have lot of open space and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. देखिए इसमें क्या बताया कि मैरी का जो जन्मदिन था तो क्या हुआ कि केक काटने के लिए वे अपने मित्रों के साथ में गुरप्रीत का इंतजार कर रही थी. आखिरकार खांसती, थकी और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची. उसने बताया कि अत्यधिक यातायात
यानी कि जाम लगा हुआ था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल में ही गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ बेहतर शिक्षा, नौकरी और चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सभी लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़भाड़ तथा अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छे अस्पताल और अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल नहीं हैं, परंतु हमारे यहाँ क्या है भाई, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं है तो क्या है, बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ठीक है, अब आगे देखिए। From the above conversations, we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlement. The villagers are rural settlement, where peoples are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading, etc. Rural settlement can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tract, thick forest and region of extreme climate. यानी कि जो अभी संवाद हुआ है, जो बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने देखने को मिले हैं, तो शहरी और ग्रामीण जो बस्ती हैं उनके बारे में हमने अभी जाना है। तो गांव और ग्रामीण बस्ती होती हैं कि जहां लोग कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन होती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर, सघन और दोनों प्रकीर्ण बताएं, ठीक है। तो प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस तरह की जो बस्ती हैं वो घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आगे देखिए, इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू शूट देयर एनवायरमेंट इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। दे हैव स्लांटिंग रूफ। People where water accumulate in the rainy seasons of the houses are constructed on a raised platform on or stilt. यानी कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले इलाकों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म या स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। Thick mud walls houses with thatched roofs are very common in area of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. यानी कि गर्म जलवायु वाले इलाकों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें घास फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पंख, पत्थर, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे घर बनाए जाते हैं। आगे देखिए, द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। इन अर्बन एरियाज द पीपल्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। नगर बस्तियों में, नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ट्रांसपोर्ट, परिवहन के बारे में जानेंगे। ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन अर्ली डेज इट took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and use animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. परिवहन के बारे में हम जानेंगे कि परिवहन क्या होता है। परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा तय करने के लिए बहुत अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। पहिए के आविष्कार से परिवहन आसान हो गया और समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, परंतु आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। In our country, donkey, mules, bullock and camels are common. In the Andes mountain of South America, llamas are used, as are yaks in Tibet.
The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus save times and energy. भारत में सामान्यतः खच्चर, गधे, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का इस्तेमाल इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का इस्तेमाल होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। वे थलीय मार्ग से या समुद्र मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को इतना तेज बना दिया कि आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में सिर्फ 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इस तरह से परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की बचत करते हैं। नेक्स्ट, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। उनमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे रोडवेज। ये रोडवेज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स. They can be metalled and unmetalled. The plain have a dense network of roads. Roads have also been built in terrains like desert, forest and even high mountains. Manali-Leh highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Road built underground are called subway, underpath. Flyovers are built over raised structures. यानी कि कम दूरी के यातायात के लिए सबसे अधिक सड़क मार्ग उपयोग में आते हैं। सड़कें जो है कच्ची और पक्की हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। वनों, मरुस्थलों और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग संसार के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाईओवर जो उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। रेल मार्ग, द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन्स एंड द इंडस्ट्रियल revolutions helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In place, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technology skills have enabled laying of railway line in difficult mountains terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. यानी कि रेल मार्ग के द्वारा तेजी से और कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन के आविष्कार और औद्योगिक क्रांति ने रेल के परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तेज हो गई है। ठीक है, और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारा है waterways. You already learned that since early days waterways were used for transportations. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. यानी कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि आदिकाल में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। ठीक है, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। ठीक है, इसमें आगे देखिए, नेविजेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन एज इनलैंड waterways. Some of the important inland waterways are in the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the river Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York
लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि नाव, नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अफ्रीका में नील नदी, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक। ठीक है। अब सी रूट एंड ओसेनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि समुद्र और महासागरीय मार्गों का जो है इस्तेमाल व्यापारिक माल और सामान को एक स्थान से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। संसार के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन यानी कि जो बंदरगाह हैं वो एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, यूरोप में लंदन, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका में डरबन और केप टाउन और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। ठीक है। आगे देखिए इनसे क्या होता है कि हम आसानी से जो है बंदरगाहों से हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, अपने सामान को पहुंचा सकते हैं आसानी से। आगे देखिए बंदरगाहों के रास्ते से। आगे देखिए एयरवेज। This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most accessible area and in time of calamities for rescuing peoples and distributing foods, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt. एयरवेज के बारे में हम पढ़ेंगे। वायुमार्ग क्या होता है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा भी साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे तूफान और कोहरे से को प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां रेल मार्ग और सड़कें नहीं हैं वहां पर हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और भोजन, कपड़े, जल और दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई पत्तन हैं मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, संचार के बारे में। Communication is the process of conveying message to other. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The evolution of communication system. The advance in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communications are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspaper, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. These satellites have made communication even faster. Satellites have developed in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interactions but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotel sittings at home. इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो संचार है दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से पूरे संसार में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल होता है। समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, मास मीडिया जिनको कहते हैं। ठीक है। सैटेलाइट की सहायता से संचार में तीव्रताएं, तेल की खोज, भूमिगत जल, वनों का सर्वेक्षण, खनिज संपदा, आपदा, पूर्व चेतावनी एवं मौसम पूर्वानुमान आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुका है।
इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं आई, बल्कि इनसे हमारा जीवन और अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही हवाई जहाज, रेल, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। सारे संसार में इस प्रकार लोगों और सेवाओं तथा संस्थाओं के मध्य तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण हम पूरे विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।